Hello children, once again I welcome all of you to my YouTube channel. Today we'll be doing chapter number 7 from your supplementary reader class 10 CBSE, and that is The Necklace, written by Guy de Maupassant. Before we discuss this chapter in detail, let us discuss about the writer. Well, my dear children, Guy de Maupassant was a 19th century French author who was born on 5th August 1850, and he is often remembered as a master of the short story, and most of his short stories depicted human lives and destinies, and somewhere people liked his writings very much. At last, he died on 6th July 1893. So that was a kind of short information about the author. Now we'll discuss this chapter in detail. Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? Now, in this chapter, we will read about Matilda, a lady, and she was once invited to a grand party. And she was having a beautiful dress, but something was lacking. And what was that? Jewelry. So ultimately what happened, she went to her friend, she borrowed a necklace from her friend and she wore it and she went to the party. Everything was fine, but unfortunately she lost that necklace which she borrowed from her friend. What happens then? Now in this story we will find out what happened next. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. Now this she pronoun is used for Matilda. So this woman, this lady Matilda, she was a beautiful lady and she was young also, and she was born in a family of clerks. वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुई थी जिस परिवार में ज़्यादातर लोग क्लर्क थे अलग अलग डिपार्टमेंट में, और वो बहुत खूबसूरत थी, यंग थी, और एरर ऑफ डेस्टिनी इट मीन्स दुर्भाग्यपूर्ण। ऐसी खूबसूरत लड़की को एक क्लर्क के परिवार में जन्म नहीं लेना चाहिए था, लेकिन शायद दुर्भाग्यपूर्ण उनका जन्म जो है एक क्लर्क्स की फैमिली में उनका जन्म हुआ। She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education. She was simple, but she was unhappy. Now, as she was born in a middle class family, so there was no such hope of becoming known. There was no such hope of giving dowry. There was no such hope of marrying somebody who is rich or distinguished. Distinguished means famous personality. चूँकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली में उनका जन्म हुआ था मैटिल्डा का, इसलिए कोई उम्मीद नहीं थी कि उनकी शादी बहुत दहेज देकर बहुत बड़े धूमधाम से उनकी शादी होगी, या फिर बहुत नाम होगा उनका, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से उनकी शादी होगी जो बहुत पैसे वाले होगा या फिर बहुत फेमस होगा। और अल्टीमेटली हुआ क्या, शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क, और अंत में उनकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो खुद भी क्या था, क्लर्क था। पेटी क्लर्क मीन्स एक स्मॉल क्लर्क, छोटा क्लर्क। और कहाँ पे, कौन से डिपार्टमेंट में? इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। बोर्ड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक छोटा सा क्लर्क थे उनके हस्बैंड। She was simple, but she was unhappy. She was a simple lady, but she was not at all happy. लेकिन वो अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं थी।
When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that," she would think of elegant dinners of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. Now, what happened? जब भी वो अपने हस्बैंड के साथ डिनर पर, जब वो डिनर डाइनिंग टेबल पर बैठती थी अपने घर में अपने हस्बैंड के साथ, हस्बैंड ऑपोजिट बैठे हुए हैं और वो दूसरी तरफ बैठी हुई है डाइनिंग टेबल के, और हस्बैंड क्या करते थे? ट्यूरिन, व्हाट डू मीन बाय ट्यूरिन? ट्यूरिन मीन्स किसी भी बर्तन के ढक्कन को या उसके जो कवर है उसको हटाना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ यूटेंसिल, ओके, दैट इज कॉल्ड ट्यूरिन। तो वो क्या करते थे? जब बर्तन का ढक्कन जो है वो हटाते थे, और हटाने के बाद बहुत ही खुश होकर कहते थे, "ओह, गुड पॉट पाई"। पॉट पाई मीन्स व्हाट? पैटीज, जनरली इट मीन्स पैटीज। हम जो पैटीज खाते हैं कॉन्फेक्शनरी स्टोर्स में, उसे कहा जाता है पॉट पाई। तो वो पॉट पाई देख के उनके हस्बैंड कहते थे, "वाओ, पॉट पाई बना हुआ है, आई नो नथिंग बेटर देन दैट"। इससे बेहतर तो मुझे कुछ पता ही नहीं, ये इतनी टेस्टी चीज़ है, ये मुझे इतना पसंद है कि इससे कुछ अच्छा तो मैं जानता ही नहीं हूँ। बट शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स। लेकिन कहीं ना कहीं मेटिल्डा कुछ और सोचती रहती थी। वो अपने आप को सिर्फ पॉट पाई से संतुष्ट नहीं रखना चाहती थी, वो एलिगेंट डिनर्स के बारे में सोचती थी। एलिगेंट मीन्स स्टाइलिश डिनर्स, ऐसे डिनर्स जहाँ पे ढेर सारे खूबसूरत से बर्तन रखे हुए हैं, तरह तरह के खूबसूरत बर्तन में जो है खाना सर्व किया जा रहा है। वो उस प्रकार के डिनर्स को अक्सर वो ड्रीम किया करती थी या उसको सोचा करती थी। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, सिल्वर कलर के बर्तन हैं। शी थॉट ऑफ द एक्विजिट फूड, एक्विजिट मीन्स वेरी ब्यूटीफुल फूड। भोजन भी बहुत अच्छी तरीके से सर्व किया गया है, उसको गार्निश बहुत अच्छी तरीके से किया गया है इन ए मार्वलस डिशेस, और बहुत ही खूबसूरत बर्तन, डिशेस मीन्स खूबसूरत बर्तन में रखे गए हैं। तो अक्सर वो इस तरीके के ख्यालों में खोया रहती थी कि इस तरीके के जो है जगह पर मैं डिनर करूंगी। और दूसरी तरफ हस्बैंड क्या थे? वो जो था उसी में संतुष्ट रहते थे। उनको लगता था, हाँ ठीक है, ये है, हाँ यही मेरे लिए सबसे बेस्ट है। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, नथिंग, and she loved only those things. And now this woman, this lady Matilda, she was not having any sort of frocks nor jewels, nothing. और इनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, मेटिल्डा के पास ज्वेलरी नहीं थी, और वही सारी चीज़ें उनको पसंद थी। She had a rich friend, a schoolmate at the convent, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for a whole day from despair and disappointment. Now Matilda, she had a friend, she had a rich friend. उनकी एक बहुत फ्रेंड थी जो कि बहुत रिच थी, और वो उनकी स्कूलमेट हुआ करती थी मेटिल्डा की। और मेटिल्डा उनके घर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जब भी वो उनके घर जाती थी अपने फ्रेंड के और वहाँ से वापस आती थी तो बहुत दुखी मन से वापस आती थी, और फिर दिन भर रोया करती थी। डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, उदासपन, दुखी। और क्यों? क्योंकि उनकी फ्रेंड बहुत रिच थी। उनके घर में जब वो जाती थी मेटिल्डा, तो महंगी महंगी चीज़ों को देखा करती थी। देखने के बाद शी वुड फील बिट कॉम्प्लेक्स, और उनको बहुत बुरा लगता था कि मेरे पास ये सब चीज़ें क्यों नहीं है, और वो आके रोया करती थी। One evening, her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. Here, he said, "Here is something for you." So what happened? Literally, एक शाम को, one evening, her husband returned elated. Elated means very happy. बहुत ही खुश, और बहुत ही खुशी खुशी जो है हस्बैंड घर पहुंचे, और उनके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा था, और उन्होंने अपने वाइफ को दिया, मेटिल्डा को, और कहा कि देखो, here is something for you, तुम्हारे लिए कुछ है इसमें। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. उन्होंने तुरंत, मेटिल्डा ने उस कार्ड को ओपन किया, और उसमें जो उस एनवलप को ओपन किया, उसमें से कार्ड निकला, और उस कार्ड पर कुछ शब्द जो है लिखे हुए थे, इंस्क्राइब्ड लिखे हुए थे। क्या लिखा हुआ था? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोनियो आस्क द ऑनर ऑफ Mr. and Madam Louisel's company, Monday evening, January 18, at the minister's residence. So basically ये एक invitation card था,
और ये इनविटेशन किसकी ओर से मिल रहा था? ये मिनिस्टर की तरफ से इनविटेशन था। ये जहाँ पर ये जॉब करते थे, शायद वहाँ के मिनिस्टर का इनविटेशन हो सकता है। तो एक बड़े से मिनिस्टर के यहाँ एक बहुत बड़ी पार्टी थी, फंक्शन था। किस तारीख को था वो? मंडे इवनिंग, जनवरी 18। मिनिस्टर के रेसिडेंस, मिनिस्टर के घर पर वो बहुत बड़ी पार्टी थी। और उस पार्टी में किसको इनवाइट किया गया था? मैटिल्डा और उनके हस्बैंड, ठीक है, उनको इनवाइट किया गया था। Now, instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" अब husband was expecting that his wife would be very happy, but unfortunately, what happened? She threw that invitation spitefully. Spitefully means with hatred. अब हस्बैंड सोच रहे थे कि मेरी वाइफ बहुत खुश हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैटिल्डा ने उस इनविटेशन कार्ड को नफरत के साथ, स्पाइटफुली मीन्स हेट्रेट, नफरत के साथ टेबल पर फेंका। अब मरमरिंग, मरमरिंग में अपनी मनी मन कुछ बुलबुलाने लगी और क्या बोलती है? व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट? तो वो कहती है कि मुझे क्या लेना देना इस इनविटेशन कार्ड से? तुम्हें क्या लगता है मेरा क्या लेना देना है इस इनविटेशन कार्ड से? बट माई डियरी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी. You never go out, and this is an occasion and a fine one. Now the husband, he's saying, my dear, मुझे लगा कि तुम बहुत खुश हो जाओगी क्योंकि तुम कभी भी घर के बाहर नहीं जाती हो, और एक बड़ा ओकेजन है जहाँ पर तुम अच्छा फील करोगी, घर से बाहर निकलोगी, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यू विल एंजॉय. Everybody wishes one and it is very select. Not many are given to employees. उसके बाद हस्बैंड ने कहा कि हर इंसान हमारे ऑफिस में, हमारे डिपार्टमेंट में जो भी थे, वो इस पार्टी के हिस्सा बनना चाहते थे, वो इस पार्टी में शरीक होना चाहते थे, बट वेरी सेलेक्टिव पीपल गॉट दिस अपॉर्चुनिटी. और बहुत ही कम लोगों को ये मौका मिला है. सारे एम्प्लॉयज़ को ये इनविटेशन कार्ड नहीं मिला, बट आई एम वेरी लकी कि मुझे ये इनविटेशन कार्ड मिला है. एंड यू शुड बी हैप्पी, तुम्हें खुश होना चाहिए. यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर. और तुम्हें वहाँ पर ऑफिशियल वर्ल्ड, जो भी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स, आप उन सबको वहाँ पर देखोगे. शी लुक्ड एट हिम विथ एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वेयर टू सच अ थिंग एज दैट? अब मैटिल्डा बहुत ही इरिटेशन के साथ और बहुत ही जो है एक कहता है ना उसको, जो है झल्लाई हुई कहना, या फिर एक तरीके से अपना संयम खो देना, पेशेंस खो देना, और थोड़ा गुस्से से जो है वो चिड़चिड़ाते हुए अपने हस्बैंड की तरफ देखी और कही कि ये बताइए क्या चाहते हैं आप, कि मैं क्या पहन के जाऊं वहाँ पर? ठीक है, आई हैव टू वेयर, क्या पहनूं मैं वहाँ पर? ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड. अब हस्बैंड ने ये नहीं सोचा था कि मेरी वाइफ क्या पहन के जाएगी. ही स्टैमर्ड. अब हस्बैंड जो है थोड़े से लड़खड़ाने लगे, उनके शब्द जो हैं फंसने लगे मुंह में. Why the dress you wear when we go to the theater? It seems very pretty to me. हस्बैंड ने कहा, क्यों? वो ड्रेस है ना जो हम लोग फिल्म देखने जाते हैं थिएटर में, तुम वो ड्रेस अक्सर पहनती हो, वो दैट ड्रेस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, वो ड्रेस बहुत अच्छा लगता है. He was silent, stupefied and dismayed at the sight of his wife weeping. Now the husband was silent. हस्बैंड एकदम शांत खड़े थे. Stupefied means शॉक्ड इन टेरर. एक प्रकार से वो बहुत ही कंफ्यूज्ड थे, शॉक्ड थे. इन डिस्मे मीन्स मतलब वो एक प्रकार से उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है. व्हेन ही सॉ हिज वाइफ वीपिंग, जब उन्होंने अपनी पत्नी को रोते हुए देखा तो एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और चिंतित हो गए. ही स्टैमर्ड, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर? उन्होंने बार बार अपनी वाइफ से पूछा, क्या बात है, क्या बात है? By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks, "Nothing. Only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. Give your card to some colleagues whose wife is better fitted out than I." अब वाइफ ने जो है, वाइफ के अंदर बहुत वेक्सेशन था. वेक्सेशन मीन्स चिड़चिड़ाहटपन और एक प्रकार से गुस्सा था वाइफ के अंदर. लेकिन उन्होंने उस वाइफ को उस गुस्से को कंट्रोल किया वाइफ ने, और बहुत ही धीमी आवाज़ में, काम वॉइस में जवाब दिया,
अपने आंसुओं को पोंछते हुए, वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक, जो कि उनके गाल भी जो हैं गीले हो गए थे आंसुओं से, पोंछते हुए शी सेड, नथिंग, कुछ नहीं, ओनली आई हैव नो ड्रेस, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, एंड दैट इज वाई आई कैनॉट गो टू दिस अफेयर, अफेयर मीन्स टू दिस पार्टी, और इसी वजह से मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कोलीग, और आप अपना कार्ड अपने किसी साथी को दे दीजिए, ऑफिस में जॉब करने वाले किसी साथी को, हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई, जिसकी, ऐसे साथी को दीजिएगा जिसकी वाइफ इस पार्टी के लिए फिट बैठती हो, या फिर ऐसे व्यक्ति को दीजिए जिसकी वाइफ के पास अच्छे कपड़े हैं और जो अच्छी तरीके से वेल ड्रेस्ड होकर उस पार्टी में जा सकती हो, ऐसे किसी को आप वो कार्ड दे दीजिए। He was grieved but answered, let us see, Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple. अब द हस्बैंड वॉज बिट सैड, थोड़े से दुखी हो गए हस्बैंड, ग्रीव्ड मीन्स थोड़े से दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने कहा लेट अस सी, चलो देखते हैं मैटिल्डा। फिर उन्होंने मैटिल्डा से पूछा हाउ मच वुड अ सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ, एक आम तौर पर एक ड्रेस कितने कितने रुपए का पड़ सकता है, एक ड्रेस का दाम क्या होगा, एक ऐसा ड्रेस दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, एक ऐसा ड्रेस जो किसी भी पार्टी या फंक्शन में पहना जा सके, समथिंग वेरी सिंपल, जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो, बट एक ऐसा ड्रेस हो जिसको कहीं पर भी पहन के जाया जा सके, कितने तक का जो है वो आएगा। She reflected for some seconds, thinking of a sum that could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. ना जो वाइफ थी, वाइफ कुछ सेकंड्स के लिए सोची और उन्होंने सोचा कि मुझे इतना ज़्यादा दाम भी नहीं बोलना है कि इतना बड़ा दाम सुनकर मेरे हस्बैंड, जो कि एक इकोनॉमिकल क्लर्क हैं, एक छोटे से मामूली से जो क्लर्क हैं, वो इतना बड़ा दाम सुनकर डर जाएं और चिल्ला उठें कि ये क्या, इतनी बड़े, इतने ज़्यादा पैसे। तो वाइफ ने सोचा कि ऐसा दाम बताऊं मैं जो हस्बैंड के लिए भी कंफर्टेबल हो और जिसमें मेरा काम भी हो जाए। फाइनली शी सेड इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, थोड़ा सा हिचकिचाहट के साथ वाइफ ने कहा, आई कैनॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू बी दैट 400 फ्रांक्स ought to cover it. उन्होंने कहा मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती, बट 400 फ्रैंक्स, फ्रैंक्स दिस इज द करेंसी ऑफ फ्रांस, जैसे हमारे इंडिया में रुपए चलते हैं वैसे फ्रांस में फ्रैंक्स चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि 400 फ्रैंक्स काफ़ी हो जाना चाहिए एक अच्छे से ड्रेस के लिए। He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. अब हस्बैंड का चेहरा थोड़ा सा उतर गया, क्योंकि उन्होंने कुछ पैसे अपने पास जमा किए थे, सेविंग की थी हस्बैंड ने, और वो कितने पैसे थे, 400 फ्रैंक्स थे। और वो क्यों उन्होंने सेविंग की थी, वो एक्चुअली में एक गन खरीदना चाहते थे। क्यों गन खरीदना चाहते थे, ताकि उस गन को खरीदने के बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ हंटिंग पर जा सके। कौन से फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स जो अक्सर हंटिंग पर जाते हैं, शिकार पर जाते हैं, और किसका शिकार करते हैं, लार्क्स। लार्क्स क्या है, दिस इज ए काइंड ऑफ बर्ड, ठीक है, एक बर्ड है, स्पेशली समर्स में ये लोग जाके शिकार करते थे। तो उसके लिए वो पैसा इकट्ठा कर रहे थे हस्बैंड। नेवरदलेस ही आंसर्ड, very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress. लेकिन हस्बैंड को अपनी वाइफ की इस हालत को देखकर उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा, तुम एक अच्छा सा ड्रेस ले लो। तो हस्बैंड को लगा कि ठीक है, मैं अपनी ज़रूरतें बाद में पूरी कर लूँगा, वाइफ की पहली ज़रूरतें मैं पूरी कर दूँ। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मैडम Louisel seemed sad. This MME, that is actually the short form of madam, ठीक है। मैडम लुइजिल कौन है, डोंट गेट confused, मैडम लुइजिल इज एक्चुअली द नेम ऑफ मैटिल्डा, ठीक है। मैटिल्डा को मैडम लुइजिल भी कहा गया है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सो द डे ऑफ द बॉल, बॉल हियर मीन्स पार्टी। अब फाइनली क्या होगा, क्या हुआ कि अब जो जिस दिन पार्टी में जाना था वो दिन नज़दीक आने लगा। एंड मैडम लुइजिल सीम्ड सैड, डिस्टर्ब्ड, एंक्शियस, अब वो काफ़ी डिस्टर्ब थी, दुखी थी,
और बहुत ज़्यादा अपसेट भी थी मैडम लुइजल। नेवरदलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, ड्रेस लगभग लगभग तैयार था। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days। तो हस्बैंड काफ़ी दिन से देख रहे थे मैटिल्डा को कि बड़ा अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। उन्होंने एक शाम पूछा कि क्या बात है, पिछले 2-3 दिनों से तुम बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हो, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। एंड शी रिस्पॉन्डेड, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty-stricken look. I would prefer not to go to this party. Now she said that I'm very disturbed. मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत disturbed हूँ। Vexed means क्यों? Because I'm not having a jewel. मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, कोई जेवर नहीं है पहनने के लिए। To adorn myself. Adorn means to decorate myself. अपने आप को सजाने के लिए मेरे पास कोई अच्छा सा जेवर नहीं है। और मैं अगर वहाँ पे जाऊँगी तो क्या होगा, आई वुड लुक लाइक अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लेडी, यू नो, मतलब एक गरीब औरत की तरह मैं वहाँ पर दिखूँगी। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, और बेहतर होगा कि मैं इस पार्टी में ना जाऊँ। He replied, you can wear some natural flowers in this season, they look very chic. She was not convinced. No, she replied, there is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women. Now the husband replied कि अरे तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स जो है वेयर करके जाओ, कुछ फूलों की माला पहन लो, नेचुरल फूलों की माला जो होती है, रियल फूलों की माला, वो अच्छा लगेगा और इस सीजन में जो है ये खूबसूरत भी लगेगा। चिक, CHIC, चिक मीन्स स्टाइलिश, नो, इट विल लुक ब्यूटिफुल। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड बट शी वॉज नॉट हैप्पी विद दैट। ओके, नो, शी रिप्लाइड, उसने कहा नहीं, देर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग दैन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमेन। सो बेसिकली उसने मैटिल्डा ने कहा कि उतने बड़े बड़े अमीर घर की औरतें वहाँ पर आएंगी और उनके बीच में इससे ज़्यादा शर्मनाक बात, ह्यूमिलेटिंग मीन्स इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि मैं वहाँ पर फूलों की माला पहनकर जाऊँ और पूरे हवा में को किसकी खुशबू फैल जाए, फूलों की खुशबू फैल जाए, और वो मुझे बहुत ही गंदा लगेगा। क्योंकि बाकी जो रिच वुमेन होंगी वो तो अच्छे अच्छे परफ्यूम्स लगा कर आएंगी, तो लेकिन मैं वहाँ पे जो हूँ फूलों की जो है, मेरे जो है फ्लावर्स जो मैं पहनूंगी उससे फूलों की खुशबू आएगी और बड़ा ऑड लगेगा। शैबी एयर, यहाँ पे उन्होंने शैबी एयर इसलिए कहा है क्योंकि वो कंपेयर कर रही हैं रिच वुमेन के साथ और उनके सामने इनका जो फूलों की खुशबू है वो बहुत ही बेकार लगेगी। Then her husband cried out, how stupid we are. Go and find your friend Madame Forestier and ask her to lend you her jewels. हस्बैंड में हस्बैंड के दिमाग में एक आइडिया आया। अरे कहा, अरे कितने बेवकूफ़ हैं हम लोग, अरे तुम्हारी फ्रेंड है ना मैडम फॉरेस्टियर, अरे जाओ अपने फ्रेंड से मांग लो, शी इज़ अ रिच लेडी, वो पैसे वाली औरत है, और जाओ उससे एक ज्वेलरी, एक जेवर तुम उधार ले लो, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए पार्टी में पहन लेना और उसके बाद वापस कर देना, किसको क्या पता। She uttered a cry of joy. It is true, she said. Now Matilda became very happy. She was quite happy with this idea. And she said, I had not thought of that. And she said, oh, fine, you are absolutely right. That idea did not come in my mind. अरे ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं था ये आइडिया। The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. Now next day she went to her friend's house. वो अपने फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर के घर गई और अपनी दुखद कष्ट भरी कहानी, स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस मीन्स अपनी कष्ट भरी कहानी सुनाई। मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, brought it, opened it. Madam Forestier went to her closet. Closet here means, you know, अलमारी कह सकते हैं, अलमीरा कह सकते हैं, जहाँ पर कबर्ड कह सकते हैं, जहाँ पर उन्होंने अपने सारे ज्वेलरीज रखी हैं, और वहाँ से उन्होंने एक बड़ा सा डब्बा जो है ज्वेल बॉक्स का डब्बा निकाला, लेकर आए, उसे ओपन किया एंड सेड चूज माय डियर। उसके बाद कहा मैटिल्डा से कि पसंद करो जो तुम्हें चाहिए। She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. अब उन्होंने मैटिल्डा ने देखा कुछ ब्रेसलेट रखे थे, कुछ मोतियों की माला थी, कॉलर ऑफ पर्ल्स मीन्स मोतियों की माला थी, वेनिशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड मीन्स ये वेनिशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड ये बहुत ही महंगा और बहुत ही स्पेशल कहा जाता है। तो एक क्रॉस वाला भी वहाँ पे एक
नेकलेस ज्वेलरी थी वो भी उन्होंने देखा, और भी कुछ वहाँ पे जेवर थे। एडमायरेबल वर्कमैनशिप मीन्स जो बहुत ही खूबसूरती से बनाए गए थे, वर्कमैनशिप मीन्स बहुत ही अच्छी तरीके से कारीगरी हुई थी उस पर। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, हेजिटेटेड बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम। अब उन्होंने उसको शीशे के सामने पहनकर देखा, हिचकिचाहट हो रही है, समझ नहीं पा रही क्या करना है, लेके जाएं कि नहीं लेके जाएं। देन शी आस्क्ड, हैव यू नथिंग मोर? उसके बाद मैटिल्डा ने फिर पूछा अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर से, क्या कुछ और है तुम्हारे पास? Why, yes, look for yourself. I do not know what will please you. Suddenly, she discovered in a black satin box a superb necklace of diamond. इनिशियली व्हाट हैपेंड, मैडम फॉरेस्टर ने कहा बिल्कुल और भी मेरे पास है, अब मुझे क्या पता तुम्हें क्या पसंद है, देख लो ये सब भी हैं। कह के उन्होंने कुछ और भी जो है ज्वेल सामने रख दिए। इतने में ही जो है एक सैटिन बॉक्स में रखा हुआ डायमंड का नेकलेस उस पर नजर पड़ी मैटिल्डा का। सैटिन बॉक्स मतलब, सैटिन मीन्स स्मूथ फैब्रिक, मखमली कपड़े का बना हुआ एक बॉक्स था, उसमें एक नेकलेस था, डायमंड का नेकलेस, उस पर नजर पड़ी और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था वो। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, और कांपते हुए जो है मैटिल्डा ने उस नेकलेस को बाहर निकाला। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वॉज एक्सटैटिक, और उसके बाद उसे अपने गले पर लगाया, गले पर लगा कर देखा। एंड एक्सटैटिक मीन्स वेरी वेरी हैप्पी, एंड शी वॉज सो हैप्पी एंड शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल। Then she asked in a hesitating voice, full of anxiety, could you lend me this, only this? अब बहुत ही हिचकिचाहट भरी आवाज़ में और थोड़ी सी परेशान भरी आवाज़ में उन्होंने कहा अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर से, क्या तुम मुझे ये दे सकती हो, सिर्फ मुझे यही चाहिए, डायमंड नेकलेस। वाई येस सर्टेनली, उन्होंने कहा बिल्कुल ले जाओ। She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. Now Matilda became very happy. She hugged her friend, वो गले मिली, embraced her, और उसके बाद खुशी खुशी जो है वो अपने घर उस खूबसूरत डायमंड नेकलेस को लेकर चली गई। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, फाइनली वो पार्टी का दिन आ गया। बॉल हियर मीन्स पार्टी। मैडम लुइजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, और मैडम लुइजल बहुत खूबसूरत लग रही थी उस पार्टी में। शी वॉज द प्रीटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। और उस पार्टी में जितने भी लोग थे उन सब में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, एलिगेंट लग रही थी, ग्रेशियस लग रही थी, स्माइलिंग फेस था उनका, बहुत खुश थी वो। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, आस्क्ड हर नेम एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और हर एक इंसान वहाँ पर जो था वो नोटिस कर रहा था मैटिल्डा को, मैटिल्डा से नाम पूछ रहा था और मैटिल्डा के साथ समय बिताना चाह रहा था। वांटेड टू बी प्रेजेंटेड मीन्स वो अपने आप को मैटिल्डा के साथ प्रेजेंट करना चाह रहे थे, मैटिल्डा के साथ समय बिताना चाह रहे थे। She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart. Now she was dancing with enthusiasm, बहुत ज़्यादा खुश थी वो, और एकदम intoxicated with pleasure मतलब वो उस हैप्पीनेस में डूबी हुई थी। इंटॉक्सिकेटेड मतलब एकदम डूब चुकी थी हैप्पीनेस में। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमिरेशन, एडमिरेशन मीन्स तारीफ, प्रशंसा जो लोग कर रहे थे, बस उसी के बारे में सोच रही थी। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, और ये एक प्रकार से विक्ट्री थी उनकी, और ये हमेशा से ऐसी ख्वाहिश की है कि बड़े बड़े पार्टीज़ में जाना, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना, और आज वो सारे लोग, बड़े बड़े लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं और बहुत उनको अच्छा लग रहा था। शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, और लगभग सुबह 4 बजे वो अपने घर के लिए आई। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ स्लीप इन वन ऑफ द लिटिन सलोन्स सिंस मिडनाइट विथ 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम। अब वो पार्टी में इतना ज़्यादा मस्त हो गई थी, इतना ज़्यादा एंजॉय करने लगी थी कि उन्हें अपने हस्बैंड की भी फिक्र नहीं थी, और हस्बैंड जो कि आधे नींद में थे, और वो सलोन मतलब डिफरेंट रूम, दूसरे रूम में वो बैठे हुए थे 3 साथियों जेंटलमैन के साथ, जिनकी वाइफ्स वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, और ये अपना एंजॉय कर कर आई थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। ही थ्रू अराउंड
her shoulders the modest wrap they had carried, whose poverty clashed with elegance of the ball costume. और अब हस्बैंड ने क्या किया, जो एक जैसे शॉल होता है पहनने के ऊपर ओढ़ने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, उनके पास एक शॉल था जो घर से लेकर आए थे, लेकिन वो शॉल जो था बहुत महंगा नहीं था। वो मॉडेस्ट रैप का मतलब होता है एक आम तौर पर एक सिंपल सा शॉल था, और रैप का मतलब ढक देना, ठीक है। तो हस्बैंड ने क्या किया, अपने वाइफ के कंधे पर जो है वो शॉल उसने रख दिया, उड़ा दिया। लेकिन वो शॉल जो है और जो ड्रेस मैटिल्डा ने पहना था, वो दोनों आपस में मेल नहीं खा रहे थे, क्योंकि शॉल बहुत ही सस्ता चीप लग रहा था, और जो ड्रेस मैटिल्डा पहनी थी और जो नेकलेस वो पहनी थी वो बहुत ही महंगा और बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही कॉस्टली लग रहा था। तो शॉल से गरीबी झलक रही थी, और जो ड्रेस मैटिल्डा ने पहना था उससे जो है एक प्रकार से जो है रईसी झलक रही थी। She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. अब जल्दी जल्दी मैटिल्डा वहाँ से निकलना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दूसरी औरतें जो कि महंगे महंगे मखमली शॉल ओढ़ी हुई थी, उनकी नज़र मैटिल्डा पर पड़े, जो कि एक सिंपल सी मामूली सा शॉल ओढ़ी हुई है। लुइजिल डिटेन्ड हर। वेट, लुइजिल ने उनको रोका, कहा वेट, आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब, मैं जाके टैक्सी बुलाता हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली। लेकिन बिल्कुल भी मैटिल्डा वहाँ रुकना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई उनको उस सिंपल से शॉल ओढ़े हुए देखे, और वो जल्दी से जो है वहाँ से उतर के चली गई। When they were in the street, they found no carriage. अब वो सड़क पर चल रहे थे, रास्ते में कहीं पर कोई गाड़ी मिल जाए, लेकिन कोई गाड़ी नहीं मिली। They began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. तो उन्होंने थोड़े ही दूर में कोचमैन, व्हाट डू मीन बाय कोचमैन? कोचमैन मीन्स आप कह सकते हैं कैरेज, जो जहाँ पे एक हॉर्स के पीछे कैरेज लगा रहता है, घोड़े के पीछे एक डब्बे की तरह कैरेज लगा होता है, लोग उसमें बैठते हैं, दैट इज कॉल्ड यू नो, और उसको जो चलाता है ही इज कॉल्ड एज कोचमैन। तो थोड़े से दूर में उन्होंने देखा एक कोचमैन को वहाँ पर, और उन्होंने आवाज़ लगाई। हेलिंग मीन्स टू कॉल somebody from a distance. They walked along towards the river, hopeless and shivering. Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. और उस नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं, कोई साधन नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है घर पहुंचने के लिए। बड़े बड़े पैसे वाले लोग जो फंक्शन में आए थे, वो अपनी अपनी कार से आए थे, वो सब अपनी अपनी कार से जा चुके थे, इनके पास टैक्सी भी नहीं था, और दूर में एक कोचमैन जा रहा था, उसने भी रुका नहीं, ठंड भी लग रही थी, अब पैदल चल रहे हैं दोनों। इतने में ही उनको जो है एक कोचमैन मिल गया, जो फाइनली अक्सर ऐसे लोग दिखा करते थे रात के समय, तो उनको हेल्प मिल गई, एक टैक्सी मिल गई कह सकते हैं आप जाने के लिए। इट took them as far as their doors and they went wearily up to their apartment. अब बहुत ज़्यादा दोनों थके हुए थे, फंक्शन पार्टी कर कर सुबह के 4 बज रहे हैं, और जल्दी जल्दी वो जो हैं अपने रूम में आए। वियरली मीन्स यू नो वेरी टायर्ड। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर नाउ, लिटरली द पार्टी इज़ ओवर। जो शो ऑफ करना था, जो दिखाना था, जो दिखावा करना था, वो सब खत्म हो चुका है। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाई 10 o'clock। और हस्बैंड के दिमाग में ये था कि सुबह 10 बजे तक मुझे ऑफिस पहुंचना है। She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. अब घर पहुंचने के बाद शीशे के सामने खड़ी हो गई मैटिल्डा, और जो शॉल ओढ़ी हुई थी, उन्होंने सोचा कि चलो अपने शॉल को हटा के एक आखिरी बार अपनी इस खूबसूरत नेकलेस को इस ड्रेस के साथ मैं शीशे में एक बार देख लूं, जो इतना लोग मेरी तारीफ़ किए हैं। और जैसे ही उन्होंने उस शॉल को हटाकर शीशे के सामने अपने आप को देखा, सडनली शी अटर्ड ए क्राई। इतने में वो जोरदार तरीके से चिल्लाई। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक। एंड वॉट वॉज द रीज़न? वो जो डायमंड नेकलेस था, दैट वॉज नॉट अराउंड हर नेक। समवेयर शी हैज़ लॉस्ट दैट नेकलेस। कहीं ना कहीं वो नेकलेस खो चुका है। सो टुडे वी विल स्टॉप this
chapter here only in this video. In the next video, we will continue the rest of the portion. I hope you have understood this chapter. Whatever we have discussed so far, still if you have any confusion, you can ask me in the comment section and I'll be responding to your queries. So that was all from this video. Thank you, take care, and God bless you.